Hello everyone, today we are here to see what updates are made regarding warfarin overdose. So before understanding that, we must understand what is INR because INR play very crucial role in that. So INR means International Normalization Ratio. What it does so? First of all, it shows that how long blood will take time to clot, means time taken by blood to clot. Okay, and this can be done through blood test. Generally with INR we also see PT value, means prothrombin time. And why we look this? I told now, we used to watch how much time blood will take to clot. Generally this is assessed in the heart problem or any organ transplantation, and or any person is on the blood thinning medicine, in all that case. So let understand what's normal value of INR. Here normal value of INR is 0.8 to 1.2. Normally 0.1 variation you will be seeing here and there. So just don't go there. Okay, I must use the bilingual language. Hindi should be also there. So normal value of INR is 0.8 to 1.2. This value will be considered when person is not on any blood thinner medication, not on blood thinner ड्रग. अब आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि अगर पेशेंट जो है कि ब्लड थिनर ड्रग पे, देन व्हाट विल बी द आईएनआर कंसीडर्ड, बिकॉज ब्लड थिनर मतलब कि आईएनआर की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी. व्हेन अ पर्सन ऑन ब्लड थिनर ड्रग, और पर्सन कब होता है ब्लड थिनर ड्रग पे, जनरली कुछ सर्जरीज में, मोस्ट ऑफ इंडिकेशन is like arterial fibrillation. Next, in DVT case, blood thinner drug are used. Next, pulmonary embolism case. These are the some condition where blood thinner drug are used. What? Blood thinner drugs are used. So in this case, what will be the normal INR will be considered? It's about 2 to 3. Other condition is what? Like heart surgery. What? Heart surgery. In heart surgery, valve replacement. So in valve replacement, there is a high chance of blood clot. So to prevent from the blood clot, doctor prescribe the blood thinner drug, that warfarin. So in that case, what will be the normal INR value? In this case, normal INR will be considered 2.5 to 3.5. This much we have seen. Next question is that why INR is matter? What will happen when INR will increase and what will be happen when INR will decrease? So in that case, let's discuss what will happen. What will happen? First,
low INR. In that case, risk of clotting are seen. What? Risk of clotting. If too high INR, then risk of bleeding. So I will suggest only that you remember this 2 point and normal INR value. Generally up to 3.5 is considered when person is on blood thinner drug. So अभी तक हमने इंटरनेशनल नॉर्मलाइजेशन रेशियो देखा. इसको हम क्यों करते हैं? टू सी द हाउ मच टाइम विल टेक ब्लड इन क्लॉटिंग. नेक्स्ट नॉर्मल आईएनआर वैल्यू क्या है, और जब पेशेंट ब्लड थिनर ड्रग पे नहीं है तो क्या वैल्यू होगी, जब पेशेंट ब्लड थिनर ड्रग पे है तो क्या वैल्यू होगी. उसके बाद भी हमने डिस्कस किया कि अगर टू लो मीन्स बहुत ज्यादा कम हो गया आईएनआर तो क्या होगा, बहुत ज्यादा हाई हो गया तो क्या होगा. अब हम अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आते हैं, दैट इज रिगार्डिंग अपडेट. वॉरफेरिन ओवरडोज के रिगार्डिंग जो अपडेट बनाई गई है वो क्या है. तो आपको इतना पता ही होगा कि वॉरफेरिन ओवरडोज जब होता है तो उसका एंटीडोट क्या होता है, विटामिन के. व्हाट? विटामिन के. मैंने आईएनआर को क्यों डिस्कस किया, क्योंकि आईएनआर इसमें बहुत ज्यादा मैटर करता है. वारफेरिन के टाइम पे आईएनआर को हमेशा मॉनिटर करते रहना है. तो पहला केस ये होता है कि जब वारफेरिन पे है पर्सन एंड उसका आईएनआर वैल्यू मोर देन 4.5 हो और लेस देन 10 मीन्स 4.5 टू 10 के बीच में हो उसकी वैल्यू. प्रीवियस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग जो है ओरल विटामिन के देते थे, कितना 2.5 टू 5 mg. व्हाट? प्रीवियस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ओरल विटामिन के देते थे 2.5 टू 5 mg. बट न्यू गाइडलाइन के अकॉर्डिंग फर्स्ट हम वॉरफेरिन को स्टॉप कर देंगे. नेक्स्ट इस केस में अभी हम विटामिन के को नहीं देंगे. ठीक है, ये कब की बात की जा रही है, जब आईएनआर की वैल्यू 4.5 टू 10 के बीच में हो. हम विटामिन के अभी नहीं रिफर करते. क्यों? क्योंकि वॉरफेरिन क्या होता है कि रेजिस्टेंस नहीं होता बॉडी में, और जब रेजिस्टेंस नहीं होता तो ये स्लोली कुछ टाइम बाद मीन्स विद इन वी कैन से 12 टू 24 आवर आईएनआर की वैल्यू क्या होने लगती है, डिक्रीज होने लगती है. मीन्स जो वारफेरिन की भी वैल्यू क्या होने लगती है, डिक्रीज होने लगती है. अगर उस केस में भी नहीं डिक्रीज हुआ तो फर्दर इंटरवेंशन लेते हैं. सो लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट सेकेंड अपडेट. व्हेन वारफेरिन पे पेशेंट है और उसकी आईएनआर वैल्यू मोर देन 10 है बट अभी ब्लीडिंग अकर नहीं हुई है, इंटरनल ब्लीडिंग इज नॉट सीन, द प्रीवियस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग जो है कि आईवी देते थे क्या, विटामिन के. एससी भी देते लेकिन हम इसको प्रिफर नहीं करेंगे. रीजन कि ये स्लो एब्जॉर्प्शन होता है, स्लो एब्जॉर्प्शन होता है, और दूसरी बात ब्लीडिंग की चांसेस हैं, तो हम इसको जनरली क्या करते हैं, अवॉइड ही करते हैं. क्या करते हैं? अवॉइड ही करते हैं. और आईवी विटामिन जो देते हैं वो 5 टू 10 mg प्रीवियस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग. लेकिन अभी न्यू गाइडलाइन के अकॉर्डिंग उसने फर्स्ट में बताया कि अवॉइड करना है भी विटामिन के. अब आईएनआर की वैल्यू मोर देन 10 है, उस केस में हम क्या करेंगे, ओरल विटामिन के को हम अब रिकमेंड करेंगे 2.5 टू 5 mg. नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड. नाउ यहाँ पे आईएनआर की वैल्यू मोर देन 10 है, नेक्स्ट ब्लीडिंग भी स्टार्ट हो गई है, मीन्स इंटरनल ब्लीडिंग भी प्रेजेंट हो गया है. उस केस में प्रीवियस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग जो है कि आईवी विटामिन के देते थे विद एफएफपी, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा के साथ देते थे. या फिर अगर फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा नहीं हुआ तो हम प्रोथ्रोम्बिन कॉम्प्लेक्स कंसेंट्रेट देते थे. व्हाट? प्रोथ्रोम्बिन कॉम्प्लेक्स concentrate. And what is this? Fresh frozen plasma. What? Fresh
रीजन क्या है? इसके अंदर जो है कि क्लॉटिंग फैक्टर्स होते थे, इस वजह से ये दिए जाते थे। बट अभी न्यू गाइडलाइन के अकॉर्डिंग क्या किया गया है, आईवी विटामिन के तो देंगे बट एफएफपी को मोस्टली अवॉइड करने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट प्रायोरिटी हम जो है पीसीसी को देंगे। किसको? पीसीसी को। और सेकंड प्रायोरिटी पे हम एफएफपी को रखेंगे। आई होप आपको समझ आया होगा। हम फिर से समराइज कर दे रहे हैं इस बात को कि फर्स्ट केस में क्या हुआ था कि जब वॉरफेरिन पे पर्सन है और आईएनआर वैल्यू 4.5 टू 10 के बीच में है, तो न्यू गाइडलाइन के अकॉर्डिंग हम फर्स्टली वॉरफेरिन को स्टॉप करेंगे और अभी विटामिन के का डोज नहीं देंगे। हम स्लोली देखेंगे कि आईएनआर की वैल्यू घट रही है कि नहीं, क्योंकि वॉरफेरिन क्या नहीं होती, रेजिस्टेंस नहीं है बॉडी में, वो एब्जॉर्ब नहीं होती। सेकेंड क्या है? सेकेंड कंडीशन ये है कि जब वारफेरिन पे है पर्सन और आईएनआर की वैल्यू मोर देन 10 हो गया है, उस केस में न्यू गाइडलाइन के अकॉर्डिंग अब हम ओरल विटामिन के पर शिफ्ट होंगे। नाउ थर्ड कंडीशन ये है कि वारफेरिन पे है पर्सन, आईएनआर की वैल्यू मोर देन 10 हो गया है और अब इंटरनल ब्लीडिंग भी अकर हो गई है, तो हम आईवी विटामिन के देंगे और पीसीसी मींस प्रोथ्रोम्बिन कॉम्प्लेक्स कंसेंट्रेट पे शिफ्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पे नर्सेज के क्या रोल होते हैं, नर्सेज रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, पेशेंट को भी इसमें बहुत ज़्यादा अवेयर होना रहता है। फर्स्ट, अगर पर्सन वॉरफेरिन पे है तो ब्लीडिंग के लिए उसे हमेशा एसेस करते रहना है, जैसे कि गम्स ब्लीड ना हो, चेक करते रहना है कहीं हिमेटोमा तो नहीं फॉर्म हो गया है। अवॉइड आईएम इंजेक्शन, आईएम इंजेक्शन अवॉइड करते हैं, क्यों? क्योंकि आईएम इंजेक्शन के बाद जो है कि वहां पे इनड्यूरेशन होने के चांसेस हो सकते हैं और इंटरनल ब्लीडिंग के चांसेस इंक्रीज हो सकते हैं। इंटरनल ब्लीडिंग रिस्क। नेक्स्ट, प्रिवेंट फ्रॉम इंजरी, इंजरी से बचा के रखना है और कट से, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी वारफेरिन पे है, ब्लड थिन है, पर्सन रिस्क पे है ब्लीडिंग के, सो प्रिवेंट फ्रॉम इंजरी। एक बार ब्लीडिंग बहुत ज्यादा स्टार्ट हो जाएगी तो पर्सन हाइपोवोल्मिक शॉक में जाने के चांसेस हो जाते हैं। So it's new heading. When warfarin overdose occur. अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इमीडिएटली हम वारफेरिन को क्या कर देंगे, होल्ड कर देंगे। जस्ट इमीडिएटली होल्ड द वारफेरिन, डोंट गो फॉर एनी अदर थिंग। नेक्स्ट, एडमिनिस्टर्ड विटामिन के एज प्रिस्क्राइब एंड वेरीफाई द करेक्ट डोज एंड रूट। हम विटामिन के जो डोज हैं उनको एडमिनिस्टर करेंगे लेकिन करेक्ट देख कर, और हम फिजिशियन को भी इमीडिएट क्या कर देंगे, इन्फॉर्म कर देंगे। उसके बाद हम कंटिन्यू आईएनआर को क्या करते रहेंगे, मॉनिटर करते रहेंगे 12 टू 24 आवर, और वाइटल साइंस को भी मॉनिटर करते रहेंगे। क्या पता पेशेंट को अरिथमिया कर हो जाए, बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया, दिस दैट। जनरली आईएनआर डिक्रीज हो जाना चाहिए। अगर नॉर्मली 4.5 टू 10 है तो नॉर्मल आ ही जाना चाहिए 2.23। अब नॉर्मल मीन्स 0.8 टू 1, बहुत लोग बोलेंगे, तो यहाँ पे पर्सन क्या है, वॉरफेरिन पे है, पर्सन इज ऑन वॉरफेरिन। तो जब पर्सन वॉरफेरिन पे होता है तो नॉर्मल आईएनआर वैल्यू इसको कंसिडर किया जाता है। और आईएनआर अगर नॉर्मल हो रहा है तो ये क्या इंडिकेट करता है, विटामिन के रिस्पॉन्स को, कि यस विटामिन के इज वर्किंग। एट लास्ट डॉक्यूमेंटेशन करना है, आईएनआर वैल्यू उसमें राइट डाउन करना है, टाइम ऑफ वारफेरिन होल्ड, आपने कब जो है कि वारफेरिन को होल्ड किया था, नेक्स्ट विटामिन के का क्या डोज था और पेशेंट पे क्या रिस्पॉन्स आया है, वो सारे क्या करने हैं, डॉक्यूमेंटेशन करने हैं। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो कमेंट करिए आप, जस्ट आई विल क्लियर इट। तो आज की समय की सीमाएं हमारी यहीं पर समाप्त होती हैं। हम मिलेंगे अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस।